Jesus said that I have come that they may have life and life in abundance. So, what a great honor for us to come together in the presence of God, that we enjoy the life that God is giving us in abundance. Of course, we are learning about purpose driven life. God has created you for a purpose. So, no power in this world can take you away from the purposes of God. If you are ready to fulfill the purposes of God, God is always ready to do that for us. So, welcome you all this evening for our time of devotion. May the Lord richly bless each one of us as we worship Him and then we come for a time of devotion. God bless you all. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift our holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift our holy name. For you are great, you do miracles so great, and there is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you. तू महान, तेरे कार्य है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं. तू महान, तेरे कार्य है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं. महिमा के योग्य, आदर के योग्य, तेरी स्तुति हम करते, तेरा नाम उठाते हैं. महिमा के योग्य, आदर के योग्य, तेरी स्तुति हम करते, तेरा नाम उठाते हैं. तू महान, तेरे कार्य है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं. तू महान, तेरे कार्य है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं. तू महान, तेरे कार्य है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं. तू महान, तेरे कार्य है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं. Amen. Our God is worthy of our glory and praises. और हमारे परमेश्वर आदर और हमारे आदर और योग्य स्तुति महिमा के योग्य परमेश्वर हैं. And He deserves the glory. और वो महिमा के योग्य परमेश्वर हैं. Shall we close our eyes for a moment of prayer? आइए हम अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना में जाएं. Heavenly Father, we come to you this evening. और प्रेम ईश्वर के पिता परमेश्वर, आज शाम के समय हम तेरी उपस्थिति में आते हैं. We thank you for your presence that you have filled in all our homes that are tuned to this program this evening. हम धन्यवाद देते हैं आज शाम को जितनी लोग बाइबल अध्ययन के लिए जुड़े सबके घरों में तू उपस्थित है. I pray for abundant blessings upon all of us. हम धन्यवाद देते हैं सबों के जीवन में तेरी बहुतायत की उपस्थिति आशीष है. Lord, I pray that if there is anyone sick
And I pray that you would touch them and heal them. By the end of this devotion, oh God, they'll feel the healing touch of Jesus in their bodies. और आज शाम के समय यदि कोई शारीरिक रूप से बीमार है, प्रार्थना करते हैं इस बाइबल अध्ययन के अंत में वो पूरी तरह से चंगाई की प्राप्त करके यहाँ से जाने वाले हो Bless जाएंगे। us together. हम सबको एक साथ आशीष दें। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना में मांगता हूँ। Amen, amen. What a joy to have you with us. And of course, we begin with just reading out the names, and so many of you are already present there. Thank you. Shaila, Sam, Kurivula, and Samuel Minch, Mukesh, Manveer, Mariam, Salome Mattu, Jaflin, Abhishek, and Marjid Nazre, Shivakumar, Meena Sikdar, Ishwar Devi, and Jatin, and on and on. God bless you. Thank you for joining और us. आप सबों को प्रभु बहुत ताय से आशीष दे। Well, we continue with our series, our devotion on purpose driven life. और हम अपने जो अध्ययन को जारी रखेंगे जिसपे हम अध्ययन कर रहे हैं हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। We all know one thing, that God has created us for a purpose. और हम सब भली भांति जानते हैं कि हम सबको रचा गया है एक मकसद के लिए। And this life has a purpose for all, that God has for all of us. और हम सबके जीवन के लिए परमेश्वर के पास हमारे एक उद्देश्य है। Many a times we wonder, why am I here on this earth for? और कई बार हम सोचते हैं कि हम इस धरती पर क्यों हैं। Last class in our lesson 6, we try to understand that life is a test, it is a trust, and it is a temporary assignment. और पिछले दिन हमने जो लेसन 6 में हमने यही पढ़ा था कि जीवन एक परीक्षा है, जीवन एक भरोसा है और जीवन हमारे हाथ में सौंपा गया कार्य है। People in the world, they look at life in different ways. और जब हम संसार में अनेक लोगों को देखते हैं, अनेक लोगों की जो विचारधारा अपने जीवन के प्रति अलग-अलग सोच है। Some people, it's they think it's a journey. और कई लोग सोचते हैं कि जीवन एक यात्रा है। Something it's a battle. और कुछ लोग सोचते हैं एक युद्ध है। Something it's a race or a marathon. और कई लोग सोचते हैं एक दौड़ है और बहुत लंबी दौड़ है। But the Bible is very clear about what it is actually all about. लेकिन बाइबल बड़े साफ तरीके से बताती है कि जीवन का मकसद क्या है। The Bible says that life is a test that God is allowing us to go through. और फिर बाइबल पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि जीवन एक परीक्षा है जिसमें से हम यात्रा करके जाते हैं। Well, we all know after a test there is going to be a reward. और हम सब जानते हैं कि किसी भी प्रकार की परीक्षा क्यों न हो, परीक्षा के बाद एक प्रतिफल मिला जाता And है। also Bible talks about life as a trust. और उसके बाद बताया गया बाइबल की जो जीवन एक भरोसा है। Like somebody is entrusting me something in my hand and saying I can do business with it. I will come back and I will ask you how you did with it, and he is going to reward me accordingly. और उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि कोई हमारे हाथ में कुछ धन को देता है और कहता है कि इससे तुम व्यापार करो, क्योंकि वो हम पर भरोसा करता है कि हम उस व्यापार को करेंगे और जब वो वापस आएगा तो हम उसको दुगना करके देंगे। Well, life is also an assignment. और साथ ही साथ जो जीवन है एक कार्य प्रणाली है। When we realize these things, that God is looking at our lives as a test and a trust and a temporary assignment, we would always live it in a very meaningful way. और जब हम सभी लोग इस बात को भली भांति समझ जाते हैं कि जीवन एक परीक्षा है, जीवन एक भरोसा है और जीवन जो सौंपा गया कार्य है, तो हम सब लोग बड़ी सावधानी के साथ अपने जीवन के मकसद को पूरा कर पाएंगे। And today I would like to talk to you about an exciting chapter of this series. और आज के शाम को मैं बहुत ही एक प्रोत्साहित एक अध्ययन को करने जा रहा हूँ। If you are taking notes, we are in chapter 7 today. और यदि आप लोग इसके नोट को ले रहे हैं तो आज हम अध्याय 7 में हैं। Well, there is no test at the end of it. Okay, you can be relaxed, and but you can take down notes for your reference. और फिर अंततः कोई परीक्षा नहीं होगा, लेकिन आप अपने मतलब इसके लिए आप नोट को तैयार कर सकते हैं। So today we are going to look at the chapter. It is titled as "Reason for Everything." और आज की जो अध्याय का जो शीर्षक ये है कि सभी चीजों का एक कारण है। The Bible very clearly says that God has created this universe with a purpose. There is a reason behind it. और बाइबल बड़े साफ तरीके से बताती है कि पूरे जो ब्रह्मांड की सृष्टि की गई है उसके पीछे कुछ न कुछ कारण है। In Romans chapter 11 verse 36 talks about it. और रोमियो उसके 11 के 36 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। It says everything comes from God alone. और फिर जो भी है वो सब कुछ परमेश्वर के द्वारा आया गया है। And everything lives by His power
and everything is for His glory. और जो कुछ भी बनाया गया है उसके सामर्थ्य के द्वारा बनाया गया है और उसकी महिमा के लिए बनाया गया है। That's amazing. और ये बहुत ही अलौकिक है। See, God is the creator and He is the sustainer of the whole universe. और परमेश्वर जो सृष्टि करता है और सब कुछ उसने थाम के रखा है, वो सब कुछ करता है। And it talks about everything lives by His power. और वो कहता है कि जो भी चीजें हैं उसकी सामर्थ्य के द्वारा ठहराई गई हैं। You know, I and you are alive today. It's because of God's power and His protection upon us. और मैं और आप आज जीवित इस धरती पर वो परमेश्वर की सामर्थ्य और उसकी सुरक्षा है हमारे ऊपर। And the reason behind is that for His glory. और उसका कारण ये है कि इस कारण से हमें रखा है कि उसकी महिमा के लिए। In Proverbs chapter 16 verse 4 also talks about it. और नीति वचन उसके 6 के 4 में इस प्रकार से लिखा गया है। It says that Lord has made everything for His own purpose. और परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है सबके पीछे कारण है। So it's all for Him. और सब कुछ उसने उसके लिए बनाया है। It's all by Him. और उसके द्वारा बनाया You गया know, है। it's for Him. उसके लिए बनाया गया And है। it is going to be and in Him. और उसके लिए बनाया गया है। So the ultimate goal of this universe is to show the glory of God. और अंततः हम ये पाते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी बनाया गया, जो भी सृष्टि बनाया गया, सब कुछ की महिमा के लिए बनाया गया है। It is the reason for everything that exists today, including I and you. और जो भी आज अस्तित्व में मैं और आप, हम सब कुछ बनाए गए, एक कारण, उसका कारण ये है कि उसको महिमा देने के God लिए। made all of it for His glory. परमेश्वर ने सब कुछ बनाया उसकी महिमा के लिए। Well, without God's glory, there would be nothing. और परमेश्वर की महिमा के बिना कुछ भी नहीं है। And you may be wondering, like, what is God's glory? अब आप लोग सोच रहे होंगे परमेश्वर की महिमा है क्या? Well, what is God's glory? God's glory is who God is. और परमेश्वर की महिमा क्या है? परमेश्वर की महिमा ये है कि वो जो है, It is the essence of His nature. और ये उसकी प्रकृति का स्वभाव है, It is the weight of His importance. और ये उसके महत्व का कारण है, It is the radiance of His splendor. और उसके जो प्रकाशन का कारण ये है, And it is the atmosphere of His presence. और ये जो उसके जो वातावरण में उसकी जो उपस्थिति का कारण ये है। You know, God's glory is the expression of God's goodness that you see all around. और आप अपने इर्द गिर्द जो भी देखते हैं परमेश्वर की जो उपस्थिति है उसकी महिमा के लिए है। Now, you know what is the glory of God? It is God Himself. और अभी आप जानते हैं कि परमेश्वर की महिमा क्या है? परमेश्वर की महिमा वो स्वयं है। Now, the next question that comes to your mind, where is the glory of God? अब हम सबके दिमाग में एक और प्रश्न आता है कि कहाँ है परमेश्वर की महिमा? Well, just look around. आप अपने चारों और इर्द गिर्द देखें। Look around and you see God's glory everywhere. जब आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो आप पाएंगे सब जगह परमेश्वर की महिमा है। Everything that God created, it reflects the glory of God. जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया है सब कुछ उसके महिमा को प्रकाशित करती है। From the smallest microscopic form of, element things to the Milky Way, the Milky Way, all those universe, everything that God created, He talks about, reflects His glory. और हम जान पाते हैं कि जो सूक्ष्मदर्शी से जो छोटी सी छोटी चीजों को देखा जाता है वहां से लेके जो विशाल जो तारा मंडल आकाश मंडल उसमें जो बनाया गया सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए रखा गया Look है। at the sunset, look at the stars, it all reflects the glory of God. अब जब आप सूरज को देखते, तारे को देखते हैं और जो चंद्रमा को देखते हैं, सब कुछ देखते हैं तो आप पाते हैं कि परमेश्वर की महिमा वहां है। Try to observe the storms and the seasons that we have, it all reflects the glory of God. आप ध्यान से देखिए जो उठने वाली जो आंधी है और फिर जो मौसम है, बदलता हुआ मौसम है, सबके पीछे हम परमेश्वर की महिमा को देख सकते हैं। Creation reveals our Creator's glory. और जो सृष्टि है, जो सृष्टिकर्ता की महिमा को प्रकट करती है। God is all powerful. परमेश्वर सर्व सामर्थी है। He enjoys variety, He loves beauty, He is organized, and He is the best that you can think of, anything that you can think of. और जो परमेश्वर है जो पसंद करता है सुंदरता को, जो पसंद करता है जो अलग अलग तरीकों को, और वो पसंद करता है जो भी अच्छी भलाई है सबको वो बहुत ज्यादा पसंद करता है। The Bible says that that the heavens declare the glory of God. और बाइबल बताती है जो आकाश मंडल उसकी महिमा को गुण गाती है। Throughout the history we look at, and God has shown His glory in different times, in different ways.
ways. और जब हम इतिहास को देखते हैं हम पाते हैं कि अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया। First, he revealed his glory in the Garden of Eden. और सबसे पहले उसने अपनी महिमा को प्रकट किया अदन के बगीचा में। Then he revealed his glory to Moses. और उसके बाद उसने महिमा को प्रकट किया उसके दास मूसा के द्वारा। Then look at the tabernacle where he showed the glory. और उसके बाद हम देखते हैं कि मिलाप वाले तंबू में जहाँ पे उसने अपनी महिमा को प्रकट किया। And the temple itself. और फिर जो परमेश्वर के मंदिर में। Then look at Jesus. और उसके बाद देखिए प्रभु यीशु मसीह You को। know, and now through the church, through I and you, God is revealing his glory. और अभी अब के युग में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट कर रहा है। जो चर्च है जिसमें मैं और आप होते हैं हमारे द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट कर रहा है। God has portrayed it. Once there was a burning bush, there's a fire in the burning bush. You know, there he showed his glory. हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया उस जलती हुई झाड़ी के बीच में। Then once there was a, you know, under the cloud, in the thunder, in the smoke and brilliant light, in all those, God revealed his glory. और उसके बाद देखते हैं कि ऐसे एक समय आया कि जिस पे परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया बादल के नीचे और फिर उस आंधी और तूफान और वो गरजने वाली बिजली के बीच में परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया था। Well, let me tell you, when we all go to heaven, और मैं आपको बताना चाहता हूँ जब हम स्वर्ग जाएंगे there is no sun, there is no moon, there are no stars. और वहाँ पे कोई सूरज कोई चांद कोई तारा नहीं होगा। And what gives glory? You know, what gives light there? लेकिन अब प्रश्न उठता है कि वहाँ पे कौन प्रकाश देगा कौन महिमा देगा। How do we get light? You know, there is no, you know, there is no what is the NTPC or those companies or hydro companies that produces electricity. There is no electricity there. और फिर स्वर्ग ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी बिजली उत्पादन करने वाली कोई भी फैक्ट्री नहीं होगी। फिर ये सवाल उठता है कि फिर वहाँ पे रोशनी कैसे आएगी। Well, it is the glory of God that gives the light in all heaven. और लेकिन जो परमेश्वर की महिमा है वो महिमा पूरे स्वर्ग में जो प्रकाश को देगी। In Revelation chapter 21 verse 23 talks about it. और प्रकाशित वाक्य उसके 21 के जो 22 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। It says the city does not need the sun nor moon और उसमें लिखा है कि उस नगर में सूर्य और चांद का कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। to shine on it. For the glory of God give it light. और उजाले के लिए इसकी कुछ भी जरूरत नहीं होगी कि परमेश्वर की महिमा से उसमें उजाला रहेगा। Hallelujah. Hallelujah. You know, and also the glory of God is best reflected in Jesus Christ. और फिर हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो सबसे अच्छा ज्योति को हम प्रकाशित होते हुए देख सकते Does the हैं। Bible say that Jesus Christ is the light of the world? इसलिए बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जगत का उजाला है। He illuminates the nature of God. और उसने परमेश्वर के उस स्वभाव को उसने प्रकाशित किया प्रकट किया। And because of Jesus, we don't have to live in darkness. इसलिए प्रभु यीशु मसीह के कारण अब हमें अंधकार में रहने की जरूरत नहीं है। If you feel that you are living in any kind of darkness in your life, और यदि आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ अंधकार भरे जीवन में जी रहे हैं you know, you can follow the Lord Jesus Christ and read His word and have Him more in your life. You'll come out of the darkness and begin to live in the light of God. और आपको क्या करना है कि प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाना है उसके पीछे चलना है जिसके कारण आप उस उजाले को प्राप्त कर सकते हैं और उस अंधकार भरे जीवन से आप ज्योति में आ जाएंगे। The Bible says that the sun is the radiance of the glory of God. और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है जो पुत्र प्रभु यीशु मसीह है वो परमेश्वर की महिमा जो प्रकाश है उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकटीकरण होता That है। you see in Hebrews chapter 1 verse 3. और हम उसको देख सकते हैं इब्रानियों 1 के 3 पद में। And then we know that Jesus came to this earth so that people can see the glory of God. फिर हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आए जिससे कि लोग परमेश्वर के उस उजाले को देख पाए। The Bible talks about it in the Gospel of John. It says the Word became human and lived among us, and we saw His glory, God's glory, a glory full of grace and truth. और हम पवित्र शास्त्र बाइबल यूहन्ना रचित सुसमाचार में इस प्रकार से पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का देह शरीर को देहधारी किया और लोगों के बीच में डेरा किया और वो प्रकाशित हुआ। The inherent glory of God, that God's glory that's inherent in Him,
it is in him because he is God. और फिर जो परमेश्वर की ज्योति प्रभु यीशु मसीह में वास करती थी, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर था। It is his nature. और वो उसका स्वभाव था। See, we cannot add anything more to add light to the sun. और हमें और किसी चीज को जोड़ने की जरूरत नहीं प्रकाश के लिए सूर्य के साथ, Because you don't have to make sun brighter because it is already so bright. क्योंकि हमें सूरज को और ज्यादा प्रकाशित करने के लिए किसी और चीज को लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सूरज स्वयं ही बहुत ज्यादा प्रकाश से भरा हुआ है। So you don't have to add anything to to increase the glory of God, the light of God. इसलिए हमें परमेश्वर की महिमा को बढ़ाने के लिए और किसी चीज पे और इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो स्वयं महिमा से भरा हुआ परमेश्वर है। So God does not need more light or any of those things because he himself is the greatest expression of the light and glory. So that's his nature. He doesn't need any addition to that. और फिर इसलिए परमेश्वर स्वयं महिमा से भरा हुआ, प्रकाश से भरा हुआ है, इसलिए और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है कि हम उसके द्वारा और उसको प्रकाशित करें। Because by those we cannot add to the glory of God. और इन सारी चीजों के द्वारा हम और उसके प्रकाश को बढ़ा नहीं सकते हैं। Well, what do we need to do? लेकिन हम क्या कर सकते हैं? We are commanded to recognize that glory. और हमें ये आदेश दिया गया है कि हम उस महिमा को पहचानने वाले हो जाएं। Say, God, you are glorious. और हमें ये कहना है कि परमेश्वर तू महिमा में से भरा हुआ परमेश्वर है। And we have to honor his glory. और हमें उसकी महिमा को आदर देना है। That's why we sang this song. You deserve the glory. और हमें उसको महिमा देनी, इसलिए हमने इस गीत को गाया कि परमेश्वर तू महिमा की योग्य प्रभु We है। need to recognize it and we need to honor his glory. हमें उसकी महिमा को पहचानना है और उसकी महिमा को आदर देना है। And we need to declare his glory. और हमें उसकी महिमा की घोषणा करना The है। Bible says the heavens declare the glory of God. क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि आकाश उसकी महिमा का वर्णन कर रही है। Look at the skies. आप आकाश को देखें। Well, some months back before coronavirus, if you look at the Delhi skies and you don't see anything, it's all dark all the time. और हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस के पहले जब हम आकाश को देखते थे, जो दिल्ली शहर में हम आकाश को पूरी तरह से प्रदूषण से भरा हुआ आकाश को देखते थे। But now you look at it, you see some stars. लेकिन अब हम बाहर आते हैं तो हम आकाश में कुछ तारों को देख सकते हैं दिल्ली में। Well, with our naked eyes, we could see just few thousands of stars. और हम अपने जो अपने प्राकृतिक आँख है उसके द्वारा हम सैकड़ों तारों को देख सकते हैं। But scientifically, you see that there are billions of stars that God has set, and all those declare the glory of God. लेकिन विज्ञान ये बताती है कि जो लाखों तारे हैं जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं। So we need to honor his glory, we need to declare his glory, and also we need to praise his glory. और इसलिए हमें क्या कहना है? उसकी महिमा को हमें पहचानना है, उसकी महिमा को हमें आदर देना है और उसकी महिमा का हमें घोषणा करना है। That's all we need to do. और ये सिर्फ हमें करना है। And then we need to reflect the glory of और God. उसके बाद हमारे द्वारा उसकी महिमा को हमें प्रकट करना है। And we need to live for his glory. और हमको उसकी महिमा के लिए जीवन को व्यतीत करना है। That is why I and you are called for. और इसलिए मुझे और आपको बुलाया गया है। You know why we need to do this? क्यों हमें करना है? Because God deserves it. क्योंकि परमेश्वर इसके लिए योग्य है। God deserves honor and glory and praises. परमेश्वर योग्य है हमारी स्तुति और महिमा और आराधना को लेने के लिए। Since He made everything that you see, look around. We are created. Everything that you see are created by Him. So He deserves the glory. जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं और हम अपने आप को स्वयं को देखते हैं, हम पाते हैं जो सब कुछ सृष्टि है, सब कुछ उसके द्वारा बनाया गया है, इसलिए वो महिमा के योग्य परमेश्वर When we है। are all in heaven, जब हम सब लोग स्वर्ग में जाएंगे, this is what's going to be the song and glorious song going on all the time there. और वहाँ पे हमेशा ये जो महिमा के गीत हमेशा ऊंची आवाज में गूंजती रहेगी। The angels, millions of angels, they just declare the glory and just praise the glory of God. और फिर लाखों स्वर्गदूत गण क्या करेंगे? उसकी जो महिमा का वर्णन को करते रहेंगे। And I and you who are going to be there praising God, millions and billions of us are going to glorify God and give honor for His glory. और मैं और आप अनेकों लाखों संत के साथ, दूत गणों के साथ उसकी महिमा का हम भी वर्णन करेंगे। Revelation chapter 4:11 talks about और it. प्रकाशित वाक्य 4:11 में इस प्रकार से लिखा
है। It says, "You are worthy, O Lord God." और उस पे इस प्रकार से लिखा है कि ये परमेश्वर तू योग्य है स्तुति और महिमा के, To receive glory, to receive honor and power. और तू योग्य है स्तुति को ग्रहण करने के लिए, महिमा को ग्रहण करने के लिए, आदर को तू स्वीकार करने के लिए For योग्य you, परमेश्वर है, for you created everything. क्योंकि तूने सब कुछ बनाया है। So what God is asking us is to glorify His name. और इसलिए परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम अपने जीवन की तरह उसको महिमा दें। Only two creations of God that failed to do that. और सिर्फ हम जानते हैं कि दो जो सृष्टि जिसने उसको बनाया, वो दो सृष्टि परमेश्वर को महिमा देने से चूक गए। One is the fallen angels, और सबसे पहले जो पतन किया वो स्वर्गदूत, and then second is the people, who human beings. और दूसरा है मानव जाति। So two creations failed to give all. Look around all other creations. They just praise God and give glory and honor to God. जब हम देखते तो हम पाते हैं कि जो सारी सृष्टि है, सारी सृष्टि उसकी महिमा का वर्णन कर रही है, सिर्फ इसमें चूक गए हैं, वो है पतन किया हुआ दूत और मानव जाति। So the root cause of sin is failure or failing to give glory to God. और जो पाप का जो मूल जड़ है, उसका जड़ का स्वभाव यह है कि परमेश्वर को महिमा ना देना। But God has called us to live for His glory. लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है उसके नाम को महिमा देने के लिए। When we live for His glory, जब हम उसकी महिमा के लिए जीवन को जीते हैं, His glory is reflected in and through our lives. और हमारे जीवन की तरह उसकी महिमा बाहर प्रकट होती है। When we begin to honor and recognize His glory, praise His glory, God's name will be exalted in our lives. और जब हम उसके नाम की महिमा देते, स्तुति देते, तब क्या होता है, हमारे जीवन के द्वारा उसकी महिमा बाहर में प्रभावित होती, प्रकट होती है। I and you are created for the glory of God. मुझे और आपको रचा गया है उसकी महिमा का वर्णन करने के लिए। When we fulfill or when we begin to give glory to God, we are fulfilling the purposes why we are created for. और जब हम इस बात को समझ जाते हैं, हमारे जीवन का मकसद हमें क्यों बनाया गया है, उसको महिमा देने के लिए, तब हम एक मकसद के जीवन को जी सकते And हैं। when we begin to praise Him, और जब हम उसको स्तुति देते हैं, the problems begin to leave. और समस्या हमें छोड़ के जाने लगती है, Sickness begin to be healed. और फिर जो बीमारी है वो चंगाई को प्राप्त करती When है। we begin to praise God, the mountains begin to come down. और जब हम उसको महिमा और स्तुति देते, तब जानते हैं कि पर्वत के जैसी समस्याएं समतल होना शुरू हो जाती हैं। Jericho walls begin to fall down. और यरीहो जैसे जो समस्या दीवार है वो गिर जाती हैं। And Red Seas begin to open, wide open, and we are able to walk through that. और जो लाल समुद्र है वो दो भाग में बढ़ जाते हैं और हम उसमें से आसानी से निकल सकते हैं, By giving glory to the Lord. परमेश्वर के महिमा देने के द्वारा, And you are created for it. जिसके लिए मुझे और आपको बनाया गया We are है। going to sing a song and then we will come for a time of prayer. और अभी हम एक गीत को गाएंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में समय को व्यतीत I believe करेंगे। that God is going to reveal His glory in all of our lives today. और मैं विश्वास करता हूं आज परमेश्वर अपनी महिमा को हमारे जीवन के द्वारा प्रकट करने There are जा going रहा to be है। some miracles tonight. और आज रात्रि का कुछ अद्भुत कार्य होने वाला God है। is going to do something in your life. और परमेश्वर आज के दिन आपके जीवन में कुछ कार्य को करने जा रहा So let's है। begin to praise Him and then we'll come back for a time of prayer. इसलिए आइए हम उसको स्तुति देना शुरू कर दें और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने
have decided to follow Jesus. और मैंने निर्णय लिया है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए, Because I know one thing, that through that only I'll be able to bring glory to Him, and I will be able to live a full life and fulfill the purposes that God has created me for. क्योंकि मैं जानता हूँ उसके पीछे चलने के कारण मैं अपने जीवन के मकसद को पहचान लूंगा और उसको महिमा देने वाले हो जाऊंगा। So thank you once again for joining. May the Lord richly bless each one of you. और फिर परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। And I see so many of you, Manvar, Manveer, and Mariam, Salome, Benchina, Abhishek, Sham Singh, Augustus, Sujit, Marjit, Benchina, Harilal Samrin. God bless you. Thank you all for joining us. अब परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष को दे। And we are going to pray for certain needs right now. और अभी हम कुछ विषयों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। Well, Abhishek Singh had his birthday on 16th of September. Let's pray that God would continue to bless Abhishek. और अभिषेक का जन्मदिन था 16 तारीख को। परमेश्वर उस भाई को बहुत आज से आशीष को दे। And also we need to pray for Akash and his family. और हम आकाश उसके परिवार के लिए प्रार्थना करें। Especially for his son. और विशेषकर उनके बेटे के लिए। We are going to pray for both these needs. और हम ये दो आवश्यकता के लिए प्रार्थना करेंगे। As you see here that we have some prayer needs here. और आपने देखा यहाँ पे कुछ प्रार्थना के निवेदन And also there is a praise report that is here. और यहाँ पे है कि कुछ धन्यवाद की जो चिट्ठियाँ को हम देख सकते हैं। Well, we are going to pray for these needs. और अभी हम इस प्रार्थना निवेदन के लिए प्रार्थना करेंगे। And then once God answers the prayers, we are going to put these prayers as a praise into this body. और जब प्रार्थना का उत्तर मिल जाता है और इसमें प्रार्थना का विषय दिया हुआ प्रार्थना का उत्तर मिल जाता है तो और ये जो विषय जो महिमा के इस पात्र में आ जाएगा। So when you give a prayer request, what we would do is that we would put them into this bottle. Not really just us here. There are 200 of the Carmel Community Church prayer warriors. 24/7 they are some of them are praying all the time. और फिर जब भी आप लोग प्रार्थना के निवेदन को भेजते हैं तो हम इस प्रकार से पर्ची को बना के इसमें डालेंगे। और हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, सिर्फ हम यहाँ प्रार्थना नहीं कर रहे हैं लेकिन कार्मेल कम्युनिटी चर्च में एक प्रेयर टावर है जिसमें 200 से ज़्यादा लोग 24 घंटे सातों दिन आप लोगों की प्रार्थना आप लोगों के विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। And you can go over to our Facebook Live and there are phone numbers given. You can call over and ask for prayer. और यदि आपके पास कुछ प्रार्थना के विषय हैं हमारे फेसबुक है उसमें आप नंबर दिया गया उस नंबर में आप कॉल करके अपने प्रार्थना विषय उनको दे सकते हैं। Or you can send to us so that we'll be able to write it down and put them all here. And once you get the answer for your prayers, please inform us so that we can take those needs and then put them as praise reports into this bottle. और फिर जब आप लोग निवेदन को भेजेंगे हम इस प्रकार से इस प्रार्थना के बक्से पे डालेंगे और प्रार्थना के बाद उत्तर मिलने के बाद आप हमें जरूर सूचित कीजिएगा क्योंकि उसके बाद ये जो प्रार्थना का विषय वो प्रार्थना से स्तुति और धन्यवाद के पात्र में चला जाएगा। Well, this will now go into a sack. और इसके बाद हम विश्वास कर रहे हैं कि ये जो स्तुति और धन्यवाद का जो पात्र है वो इस पात्र में नहीं लेकिन बोरी में हो जाएगा। Because God is going to answer all the prayers that we are going to have many sacks of prayer answer praise reports with us. और हम विश्वास करते हैं कि सिर्फ एक बोरी नहीं लेकिन अनेक बोरियां जो धन्यवाद की बोरियों से भर जाएगी जो परमेश्वर इन दिनों में करने जा रहा है। Do you believe that? क्या विश्वास करते हैं? Because Jesus is a prayer answering God. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना को उत्तर देने वाला So परमेश्वर if you have a है। prayer need, you can write to us, inform us, call us, so that we will write it and keep it here. And many are going to be praying, and then God is going to answer our prayers. और इसलिए यदि आपके पास कोई भी प्रार्थना का विषय आप जल्दी से हमें सूचित करिएगा, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और उसके बाद उत्तर जरूर प्रभु देगा और वो धन्यवाद के पात्र में चला जाएगा। We are going to pray for all these needs. We are going to pray for baby Sa, who is a newborn child, 5 months only old, but the child has they have found some water in the brain, in the head. Let's pray that God would heal this child. और आज जो प्रार्थना निवेदन के साथ इस बक्से में जो प्रार्थना के विषय हैं उसके लिए प्रार्थना करेंगे। एक बच्चे के लिए प्रार्थना मांगा गया है जिसके नाम बाइसा है और वो बेबी जो जन्म ली है और उसके जो सिर पे पानी भरा हुआ है उस बच्चे की चमत्कार छुटकारे के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। So we are not going to take out all the needs, but we are going to pray for all these needs. और अभी हम प्रत्येक का नाम नहीं लेंगे लेकिन सारे विषय निवेदन को प्रभु के हाथ में पहुंचाने जा रहे हैं। And always the praise bottle is going to be, sack is going to be fuller than of course the prayer need, because Jesus is a prayer answering God and He doesn't leave us
in between, but He always holds our hands and answers all the prayers that we have. और फिर जो ये जो प्रार्थना का विषय है वो स्तुति में बदल जाएगी और इसका जो थैला है बढ़ता ही जाएगा क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। Shall we pray for these needs right now? आइए हम इस विषय के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. Loving Heavenly Father, we unite our hearts and come before your throne of grace. और प्रभु प्रेमी परमेश्वर हम अपने दिलों को एक साथ करते हुए तेरे दया के सिंहासन के तले आते हैं। Lord, we pray for all these needs that are in this body, Lord God. और इस समय परमेश्वर इस पात्र के अंदर जितने भी प्रार्थना के विषय दिया गए उन सारे विषयों को हम तेरे हाथों में दे देते हैं। Thank you, Jesus, for all the answers that you have given to our prayers. हम धन्यवाद देते हैं कि तूने जितने भी प्रार्थना को उत्तर हमें दिया है। Lord, at this time we pray for all these needs. और इस समय में सारी जरूरत के लिए प्रार्थना करते We हैं। pray for baby Sa. और हम बेबी साग बच्चे के लिए प्रार्थना करते Lord, we हैं। pray for Abhishek. और हम अभिषेक के लिए प्रार्थना करते We हैं। pray for Aga's son. और हम आकाश के बेटे के लिए प्रार्थना करते Lord, हैं। we pray for John Thomas and family. और हम थॉमस के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। We pray for all the needs that are in this place, oh God. We pray in the mighty name of Jesus. और पिता परमेश्वर जितनी भी प्रार्थना के विषय दिए उन सारे विषय को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। Right now we pray in the name of Jesus that you, Lord, you would stretch forth your hand and touch them. There is a healing needed. Heal them right now in the name of Jesus. और प्रेमी परमेश्वर हम तेरे नाम की सामर्थ्य से हम प्रार्थना करते हैं। कोई भी बीमार है यीशु मसीह के नाम से तेरे चंगाई के हाथ को इसी पर तू बढ़ा के उन्हें चंगाई को दे। We thank you, हम Jesus. तुझे धन्यवाद देते प्रभु। You are a prayer answering God. क्योंकि तू प्रार्थना को उत्तर देने वाला है। There is nothing impossible for you. तुझसे कोई भी कार्य असंभव नहीं Lord, है। at this time I pray for all the families that are, Lord, watching us right now. और इस समय जितने भी परिवार प्रभु जी बाइबल अध्ययन में उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। We pray for each and every one of them. हम प्रत्येक के लिए प्रार्थना करते We हैं। pray for your blessings upon them, oh और हम God. प्रार्थना करते हैं तेरी आशीष उनके ऊपर आ जाए। Whatever needs they have, उनकी जो भी जरूरत क्यों ना I हो। pray, Jesus, that you would meet all their needs, oh और हम God. प्रार्थना करते हैं उनकी सारी जरूरत को तो पूरा कर। Thank you for hearing and answering धन्यवाद है us. तूने हमारी प्रार्थना सुन के उत्तर दिया। We give you the glory. हम तुझे महिमा देते हैं। Because, Lord, all the glory, honor, and praises belong to you. क्योंकि हम चाहते हैं कि तू सारी स्तुति और महिमा और आदर की योग्य सिर्फ तू ही है। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना And all of us together और say, हम एक साथ मिलके कहें Amen. 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 God bless you. परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे So, आशीष दे। we'll be back on Sunday evening at 7 o'clock. और हम मिलेंगे इस रविवार को शाम को ठीक 7 बजे। And if you do not have a church to attend on Sunday, please inform us that we'll be able to send you the Zoom ID for a worship. We are having an amazing worship and great word is going to be on Sunday morning, 9 o'clock and 11 o'clock. If you are available, let us know. We'll send you the Zoom ID so you can join us. और हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, यदि आप रविवार को और किसी भी आराधना में शामिल नहीं होते हैं तो आपको हम जूम आईडी भेज के देंगे। आप हमसे संपर्क में रहिए और हमारे जो आराधना दल है, जो वचन की सेवकाई है, हमारे जीवन के बहुत आशीष का कारण है। यदि आप कहीं और सहभागी नहीं है तो हमारे साथ जुड़ के आशीष को पाए। Otherwise, I'll see you all on Sunday at 7 o'clock evening. अन्यथा हम आपसे मिलेंगे रविवार को शाम को ठीक 7 बजे। God bless you. परमेश्वर सबको आशीष दे। Thank you so much for joining with us, and may the Lord richly bless you and protect you. Keep all of you under His wings. आप परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सुरक्षित रहिए। प्रभु आप सबको अपने पंखों के आड़ में सुरक्षित रखे। Amen. आमीन।